Assalamu alaikum dear students. We are going to start online classes for functional English for BS students of education and English literature and linguistics. As we have checked the copies of semester examination, we have observed few things that our students, particularly, they are facing problems in the formation of sentence. How they can write the correct sentences, that is the problem for them. So today's topic is the formation of sentence. Formation of sentence. We have already discussed a lot of things in the semester. So therefore, we are again going to repeat formation of sentences. Sentence needs structure, and I am going to tell you that structure. How can we write the correct sentence? Such as he goes to college. Now see, he and goes and then the college. Why this goes is there? Why we have applied is? And what is this? These are the different component of sentence. Sentence consists of these components. This is we call the subject, and this is we call the verb, and this is we call the object. Now see, sentence mostly starts with subject or with helping verb. The subject, what is subject? What is the definition of subject? The definition of subject is doer of action. What is the action? Action कौन सा हो रहा है? This is action, going का action हो रहा है. This is verb. Verb means action. Verb means action, and that is the subject. Subject means doer of action. Doer of action means काम का करने वाला. अब जो काम जो एक्शन हो रहा है वो गोइंग का हो रहा है. That is verb. ठीक. In the sentence we need verb. वर्ब के सिवा सेंटेंस नहीं बन सकता. एंड दिस इज एक्शन. जो सब्जेक्ट काम कर रहा है वो ये है. किस पर काम हो रहा है, कहाँ जा रहा है? दैट इज अ कॉलेज. राइट. इन अदर एग्जाम्पल, ही राइट्स एन essay. नाउ सी, दिस इज व्हाट he is what? दिस इज सब्जेक्ट. राइट्स, कौन सा काम हो रहा है? ठीक है, जो काम हो रहा है वो वर्ब है. किस पर काम हो रहा है? दैट इज ऑब्जेक्ट. कौन सा काम कर रहा है? सब्जेक्ट. डूअर ऑफ एक्शन जो काम कर रहा है वो कौन सा कर रहा है? ऐसे. दैट इज ऑब्जेक्ट. क्लियर? सो दिस इज अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स जो काम का करने वाला है, और एक्शन जो हो रहा है दैट इज अ वर्ब. दिस इज कॉल्ड द सेंटेंस. और सेंटेंस कैन बी लाइक दैट एज वेल, सच एज डज ही राइट इट? दैट इज क्वेश्चन. नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चन, सर कि अब तो सब्जेक्ट पहले नहीं आया, पहले क्या आ गया? डज. सो इंटरोगेटिव सेंटेंस में डज कम्स बिफोर सब्जेक्ट. इंटरोगेटिव मीन्स सवाली जुमला. इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो डज है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है. ठीक है. जब सब्जेक्ट से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो दैट सेंटेंस इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, सवाली जुमला जिसे. तो दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस. नाउ सी, हैज शी done her work? That is question mark. Now here we started with does and here we started with has.
दिस इज आल्सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है इट कम्स बिफोर सब्जेक्ट। हमारे पास दिस इज हेल्पिंग वर्ब, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज मेन वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट, राइट। द सेंटेंस कैन बी विदाउट सब्जेक्ट एज वेल। सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट के सिवा भी हो सकता है। कैसे? गो आउट ऑफ माई रूम, ये कौन सा सेंटेंस है? प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। डोंट touch it. Now see, we have discussed this sentence. This is one category, and we discussed this sentence. This is another category, and we have discussed this sentence, and this is the third category. What is the difference? All these are sentence. This is sentence, this is also sentence, this is also sentence. What is the difference? Difference is this, कि these type of the sentences they are affirmative, declarative, ठीक, and these sentences they are interrogative, and these sentences they are imperative sentences. ये कौन से sentences है भाई? Imperative. Imperative sentences are those sentences that need no subject. Imperative sentences में subject की ज़रूरत नहीं होती। Subject means doer of action की ज़रूरत नहीं होती। Imperative sentence starts with main verb or don't. Imperative sentence start with main verb. Go is main verb, help is main verb, don't, that is a, here main verb is touch, don't is forbidding someone and forbids the person not to touch it. So imperative sentence are those sentence which are for order, request, prohibition, suggestion. Imperative sentences are sentences of order, request, suggestion and prohibition. मीन्स इम्पेरेटिव सेंटेंस वो हैं जो किसी को ऑर्डर करने के लिए हमें काम आते हैं, ऑर्डर, या किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए काम आते हैं, या सजेशन किसी को मशवरा देने के लिए काम आते हैं, या प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट माना किसी को रोकना, स्टॉप करना, रोकना, उसके काम आते हैं। देखिए दिस इज ऑर्डर, गो आउट ऑफ माई रूम, मेरे कमरे से बाहर चले जाओ, दैट इज द ऑर्डर। प्लीज हेल्प मी, please help me, that is a request. Where please comes, it is a request. Don't touch it, that is also order, it comes in order, but it comes in prohibition, order in the form of prohibition. Please don't touch it, ये prohibition in the context of request form है. So note it please. So these sentences are imperative sentences. Imperative sentences are those sentences which give the order, request, suggestion, prohibition. Clear हुआ? So now next step, our next step is के see this, we have to again revise. This is also sentence, that is a declarative sentence, affirmative sentence, बयानी जुमला. And these sentences we have written, these are interrogative sentence, these are imperative sentence. Now formation of the sentence, how we form the sentences, I am going to rub it
and then we are going to next step. See, as the sentences of different kinds, so we have to learn the formation of sentence. Formation में sentence कैसे बनते हैं, हमें ये चीज़ सीखनी है कि sentence बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है. एक तो जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है. उसके बाद मेन वर्ब, ठीक है. और उसके बाद जो है आगे जो चीज़ें लगती हैं ऑब्जेक्ट्स. इन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है. नाउ फॉर लर्निंग इंग्लिश एंड फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस वी आल्सो नो दैट सब्जेक्ट कैन बी ऑफ द टू काइंड्स, आइदर इट इज सिंगुलर और इट इज प्लूरल. सपोज इफ वी हैव he calls you. If the subject is he, we applied with the verb s, but if the subject is they call you, we have not applied s. हमने s अप्लाई नहीं किया. क्यों नहीं किया, ये चीज़ें हमें सीखनी है. आगे थोड़ा सा चलते हैं. ये देखें, he is calling you, right, and they are calling you. Now see, here we applied first form of verb, call. यहाँ पर हमने सिर्फ कॉल लगाया और यहाँ भी कॉल लगाया, मगर यहाँ हमने कॉलिंग लगाया, ठीक है. यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है. यहाँ पर हमने इज लगाया और यहाँ पर हमने आर लगाया. पहली बात तो यहाँ सब्जेक्ट चेंज करने की वजह से हमने यहाँ एस लगाया और यहाँ एस नहीं लगा, ठीक. ये डिफरेंट टेंस है और ये डिफरेंट टेंस है. जब टेंस जैसे चेंज होता है तो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स भी चेंज होते हैं और फॉर्म ऑफ वर्ब भी चेंज होते हैं. एज आई एम कमिंग टू द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म. ये देखिए, क्योंकि यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ हमने इज और आर लगाया है. इस किसकी वजह से, सब्जेक्ट की वजह से लगाया, और आर किसकी वजह से लगाया, सब्जेक्ट की वजह से लगाया, राइट. और इज और आर की वजह से हमने क्या लगाया, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब. वर्ब की 4 फॉर्म्स हैं. कितनी फॉर्म्स हैं, 4. देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स. सपोज कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉलिंग, ठीक है. तो these are 4 forms, first, second, third and fourth form. Such is when we are going to apply is or, तो we have to apply fourth form. अब ये चीज़ें हमें सीखनी है. we have to learn these things कि कहाँ पर हमें फर्स्ट फॉर्म लगाना है, कहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म लगाना है, कहाँ थर्ड फॉर्म, कहाँ फोर्थ फॉर्म. इट कम्स इन द टेंसेस कि टेंसेस जब हम सीखेंगे तो वी विल लर्न कि वेयर वी हैव टू अप्लाई फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस. अच्छा, उसके बाद जो है सब्जेक्ट, जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्ट कैन बी सिंगुलर एंड सब्जेक्ट कैन बी प्लूरल. सब्जेक्ट सिंगुलर भी होता है और सब्जेक्ट प्लूरल भी होता है. तो सब्जेक्ट जैसे चेंज होता है इस तरीके से हमारा फॉर्म ऑफ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होता है. इज द सब्जेक्ट इज ही, वी अप्लाइड इज. As the subject is they, we applied or. So subject can be singular and plural, both in nouns as well as pronouns. First of all, see here for the subjects. Subject में noun can be subject. जैसे suppose अली है, ये singular है.
अगर हम कहते हैं अली एंड अहमद, ये प्लूरल हो गया। या हम कहते हैं चाइल्ड, ये सिंगुलर है। अगर हम कहते हैं चिल्ड्रन तो ये प्लूरल हो गया, राइट। दीज आर नाउन। अगर हम आते हैं प्रोनाउन की बात में, तो देयर आर पर्सनल प्रोनाउंस, दीज आर नाउन्स एंड वी आर कमिंग टुवर्ड्स द पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन जो है इज द वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड है जो नाउन की जगह पर काम आता है, राइट। प्रोनाउन इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। हम बार बार अली अली को नहीं कहते, अली की जगह पर हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। तो ये हैं पर्सनल प्रोनाउंस, नोट कर लें। इसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, जो पर्सन्स की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ये जो साइड है लेफ्ट साइड, ये सिंगुलर है और जो राइट साइड है वो प्लूरल है, राइट। आई जो है वो सिंगुलर है, यू का सिंगुलर प्लूरल सेम है, और ही शी इट सिंगुलर है। वही प्लूरल है, यू प्लूरल है, दे प्लूरल है। और इसी तरीके से हम इसको अगर हॉरिजॉन्टल वे में करें डिवाइड, तो हॉरिजॉन्टल में ये जो है आई एंड वी फर्स्ट पर्सन है, यू जो है वो सेकंड पर्सन है, ही शी इट एंड दे ये थर्ड पर्सन है, राइट। अब जैसे हमें पता होना चाहिए कि ही शी इट्स थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर। और थर्ड पर्सन सिंगुलर जब होता है तो इज, वाज, डज, हैज लगता है। और जब थर्ड पर्सन प्लूरल या प्लूरल होता है तो आर, हैव, डू, वर ये लगते हैं। अब हम आते हैं एक स्टेप और आगे थोड़ा सा। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो है टेंस। विदाउट टेंसेस फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस विल बी वेरी डिफिकल्ट। अगर स्टूडेंट्स को टेंसेस का पता नहीं है तो वो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस नहीं कर सकते। अगर उनको एज एम आर का पता नहीं और एज एम आर की फॉर्मेशन कैसे होती है, उनके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब कौन से लगते हैं, तो स्टूडेंट जो है वो परेशान होता है। अब ये दीज आर द बेसिक थिंग्स। जैसे हमने ऑब्जर्व किया तो हमारे स्टूडेंट्स को बेसिक चीज़ों में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बेसिक चीज़ें जैसे फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, कैपिटल लेटर है, आर्टिकल्स हैं या टेंसेज हैं, वो स्टूडेंट्स को, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को नहीं आते। दैट इज़ द प्रॉब्लम। हालांकि हमने डिस्कस भी किया था क्लास में भी, हमने कोविड से पहले वी डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, वी डिस्कस द टेंसेज। अगेन इनके पास क्यों जा रहे हैं हम, उसका रीज़न सिर्फ ये है कि हमने जब सेमेस्टर की कापियाँ चेक की तो हमें पता चला कि स्टूडेंट्स को बेसिक चीज़ें नहीं आती। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की जो मिस्टेक्स थी, उन्हीं मिस्टेक्स की वजह से हम ये कह रहे हैं कि अभी हम यूज़ करें, स्टार्ट करें टेंस। टेंस का मकसद है टाइम, और हमारे पास 12 टेंसेज हैं, 4 इन प्रेजेंट, 4 इन पास्ट एंड 4 इन फ्यूचर। देयर आर 12 टेंसेज, हमारे पास 12 टेंसेज हैं। और इन 12 टेंसेज को हमें सीखना है एक बार और। वी हैव टू लर्न अगेन एंड अगेन, वी हैव टू डू द प्रैक्टिस। देखिए, प्रैक्टिस नहीं करेंगे काम नहीं बनेगा। वी हैव टू डू द प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, वी हैव टू डू द प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस करेंगे, जब ये चीज़ें हमारे जहन में बैठ जाएंगी तो इज़ लगता है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, हैज़ लगता है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, डू लगता है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, वाज लगता है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है। ये इज़, एम, आर, हैज़, हैव, डू, डज, वाज, वर, ऑल दीज आर बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स, ये हेल्पिंग वर्ब्स है किसके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं? टेंसेस के। और टेंसेस ही हमें जो है सेंटेंस की तरफ लेकर जाते हैं। जब हम टेंसेस सीखेंगे और टेंसेस पर हमारा कमांड होगा तो फिर चेंज द वॉइस, नरेशन, स्पीकिंग, ये ऑल दीज थिंग्स विल बी ईजी। सो नाउ द फर्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस।
ये आ रहा है आखिरी, बिल्कुल क्लियर आ रहा है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सी हर टेंस की दो चीज़ें होती है सीखनी चाहिए, एक तो फंक्शन और दूसरा स्ट्रक्चर। फंक्शन क्या है टेंस का, और फिर स्ट्रक्चर मीन्स बनावट कैसे बनता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके फंक्शंस कुछ ज़्यादा हैं, इसके फंक्शन ज़्यादा हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डेली लाइफ में, रिटन फॉर्म में भी और स्पीकिंग फॉर्म में भी। तो इसकी जो फंक्शन है वो मैं पहले फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है। नंबर 1 फंक्शन रूटीन, इट इज़ द ओनली टेंस इन प्रेजेंट विच इज़ यूज फॉर रूटीन, डेली रूटीन, रूटीन के लिए जो हम रोज़ाना का काम करते हैं डेली। एडवर्ब ऑफ रूटीन है, एडवर्ब ऑफ रूटीन के वर्ड्स हैं, जैसे डेली है, वीकली है, मंथली है, यूअली है, मोस्टली है, ऑलवेज है, ठीक है, ईयरली है, ओकेनली है। तो ये रूटीन के जो वर्ड्स होते हैं, रूटीन जो होती है वो सिर्फ इसी टेंस में होती है, प्रेजेंट में अगर है। रूटीन के दो चीज़ें हैं, एक तो आइदर इट विल बी इन प्रेजेंट और इट विल बी इन पास्ट, इसका कोई फ्यूचर नहीं होता। रूटीन जो है वो प्रेजेंट में होती है या पास्ट में होगी, या वो रूटीन जो हम पहले करते थे या वो रूटीन जो अभी हम कर रहे हैं। तो एक तो इसके लिए डेली रूटीन के लिए यूज़ होता है, दूसरा है इसका यूनिवर्सल ट्रुथ, ये भी समझो रूटीन में आ जाता है, ठीक है। और तीसरा होता है साइंटिफिक ट्रुथ, जो साइंस प्रूव करती है, ठीक है। और उसके बाद जो है शेड्यूल्स वगैरह जो आते हैं वो भी इसी में आते हैं। और फोर्थ है हमारा प्रेजेंट एक्शन। प्रेजेंट एक्शन का मकसद है जो अभी काम चल रहा है। आई डिलीवर लेक्चर, मैं लेक्चर डिलीवर करता हूँ। चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड, बच्चे बाहर खेलते हैं। तो दिस इज व्हाट प्रेजेंट एक्शन, जो अभी काम चल रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं याद रख लें कि ये एक ही टेंस है जिसके 4-5 फंक्शंस हैं, किसी और टेंस का नहीं है। हर टेंस का एक फंक्शन होता है। ये ऐसा टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसमें मिस्टेक्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, और इसके फंक्शंस भी ज़्यादा हैं, राइट। सो आई एम कमिंग हेयर। टाइम कितना है? 5 मिनट्स। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर मीन्स बनावट, बनावट मीन्स हाउ द टेंस इज फॉर्म्ड, में सब्जेक्ट वर्ब। एक बार नोट कर लें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, कौन सा टेंस सीख रहे हैं हम? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस टेक्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये बात क्लियर हो गई कि इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे मैंने कहा कि देयर आर 4 फॉर्म ऑफ वर्ब, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, ठीक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग। वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं। और इस टेंस में कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वी अप्लाई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, नंबर 1। और दूसरा डिक्लेरेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब। नो हेल्पिंग वर्ब इन अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। जो स्टेट करते हैं हम, स्टेटमेंट होती है जो, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। फॉर्मेशन कैसे होती है सेंटेंस की? वो इस तरीके से होती है कि जब हमारे पास जो ये हैं, ये सब इसको छोड़ के, ये जो ब्रैकेट इसको छोड़ के, ये जो है आई, वी, यू, दे, ये जो सब्जेक्ट जब होंगे तो कुछ भी नहीं लगेगा, सवाए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दे, ठीक है। सब्जेक्ट मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, आई, वी, यू, दे,
और ब्रैकेट ओवर मीन सब्जेक्ट अगर ये होगा या प्लूरल नेम्स होंगे तो क्या लगेगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और कुछ भी नहीं, नो हेल्पिंग वर्ब इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस सच एज आई टीच, यू लर्न, ठीक, दे प्ले। अब आप देखिए आई टीच इंग्लिश, भले आप ऑब्जेक्ट लगाए ना लगाए कोई मसला नहीं है, यू लर्न इंग्लिश, राइट, दे प्ले अ गेम, दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले हॉकी, दे प्ले फुटबॉल, क्लियर। तो हमने कुछ भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगा। आप देखें कि सिर्फ सब्जेक्ट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, नो हेल्पिंग वर्ब, नथिंग एल्स। अब जब हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये बात नोट कर लें, इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं और स्टूडेंट्स मोस्टली यहाँ मिस्टेक्स करते हैं। अब देखिए ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये पर्सनल प्रोनाउन लिखे हुए, और थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, नाउन भी थर्ड पर्सन में आता है। तो जब हमारे पास सब्जेक्ट ब्रैकेट में ही, शी, इट या हमारे पास सिंगल नेम हो तो वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ हम एस या ईएस ऐड करते हैं। क्या? जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, जब हमारे पास सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट हमारे पास क्या हो, ही, शी, इट या सिंगल नेम हो, तो हम वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। सच एज ही टीच है ना, यहाँ आई टीच था, ही टीच इंग्लिश, क्लियर हुआ? क्या लगाया हमने, ईएस लगाया। अच्छा, यहां पर यू लर्न, शी लर्न्स उर्दू, राइट, दे प्ले, अली प्लेस अ गेम। ये सेम सेंटेंसेस है। नाउ सी, इन सेंटेंसेस में हमने कुछ भी नहीं लगाया, सब आए फर्स्ट फॉर्म वर्ब के, और यहां पर हमने ईएस, एस, एस लगाया। अगर ये नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। और याद करें, ये एस या ईएस लगाने से हमने कोई प्लूरल वगैरह नहीं किया। ये प्लूरल के लिए भी काम आते हैं, वो नॉन प्लूरल होते हैं, ये बात नोट कर लें। दैट इज व्हाट के स्ट्रक्चर है, टेंस फॉर्मेशन है, ठीक है। सो वी लर्न टुडे के हाउ द सेंटेंस इज फॉर्म्ड, काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेस एज वेल एज सिंपल प्रेजेंट टेंस। और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है डिस्कस करेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में के हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, राइट। अब जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने सीख लिया, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप याद रखें कि जब हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट हैं आई, वी, यू, दे, तो वी डोंट अप्लाई एनीथिंग, जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और कुछ भी नहीं लगता। जब हमारे पास सब्जेक्ट है ही, शी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इनको क्या कहते हैं हम, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं। और ये एस या ईएस नहीं लगाएंगे तो योर सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। ईएस कहाँ लगता है और एस कहाँ लगाता है, इसको नोट कर लें। जब हमारा वर्ब एंड हो रहा है, किस पर एंड हो रहा है, ये एंड हो रहा है, किस पर एंड हो रहा है, सी एच पर। जब हमारा वर्ब, मेन वर्ब एंड हो रहा है, ये बात नोट कर लें, ओ पर, राइट, एस पर, एस एच पर, या सी एच पर, या एक्स पर, तो हम क्या लगाते हैं, ई एस। बाकी सबके साथ एस लगता है। अगर सपोज गो है तो क्या हो जाएगा, गोस। वॉश है तो क्या हो जाएगा, वॉशेस। वॉच है तो वॉचेस। टीच है, टीचेस। फिक्स है, फिक्सेस। ठीक। अब इस लेक्चर को सुनने के बाद इससे को आप जो है अपने पास रखेंगे और नोट करेंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे। याद रखें, विदाउट प्रैक्टिस यू विल नॉट लर्न द टेंसेस, विदाउट प्रैक्टिस यू विल नॉट बी एबल टू लर्न द इंग्लिश। सो ट्राई टू स्पीक इंग्लिश and try to
लर्न द टेंसेस, ट्राई टू लर्न द इंग्लिश थ्रू द प्रैक्टिस। अब आपको क्या करना है, एक होमवर्क है जो आपको करना है, वो है राइट डाउन माई डेली रूटीन वर्क, माई डेली रूटीन वर्क, अपना रूटीन वर्क लिखें, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और कुछ भी नहीं। और उसके बाद लिखिए माई फादर्स डेली रूटीन वर्क, माई फादर्स डेली रूटीन। आपके फादर जो हैं वो क्या काम करते हैं, कहाँ जाते हैं, सुबह उठने से रात को सोने तक। और याद रखें यहाँ जब अपने फादर का डेली रूटीन वर्क लिखेंगे तो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया और तमाम वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा। ठीक है, थैंक यू सो नाइस, थैंक यू, विश यू गुड लक।